Hello everyone, welcome back to Faculty Channel and this is Kusum. Well, as we all know, we have started with the learning theories on child psychology. Today our topic will be Kohler's Insight Learning Theory, which is also known as Gestalt theory of insightful learning. So even if it is coming in your any teaching aptitude examination, be it CTET, TET or UPTET or UTET, any kind of your teaching examination, so it can be asked that Gestalt theory is also known as, so you can write it as insight learning theory. Okay, now what is there in the video? Let's see. Topics to be discussed, जो मैं आज discuss करूँगी, that will be a short introduction about the theorists over here. Then learning by insight theory, what is it all about? Kohler's experiments, कुछ experiments Kohler ने करे थे in chimpanzee and apes, about them. Then steps which are involved in insight learning and the educational implication of Gestalt theory in classroom teaching. Okay, fine. So let's get started. Introduction. Kohler's learning by insight theory is related to the cognitive type of theory of learning. ये एक टाइप ऑफ कॉग्निटिव थ्योरी मीन्स जिसमें आप लोग खुद कर रहे हो कुछ काम, जिसमें माइंड, जिसमें आपका एक्सपेरिमेंट तो चलता है, बट मोर ऑन दैट द परसेप्शन इज मोर नीडेड, अंडरस्टैंडिंग इज नीडेड. ओके, इट इज लाइक लर्निंग बाय डूइंग. Yeah, it was developed by Gestalt psychologists. Now, Gestalt psychologists, who are they? They are known. This theory is also known as Gestalt theory of insightful learning. Insight theory, learning theory was given by Wolfgang Kohler. ये तीन important है, इनको आपने याद रखना है. That in Gestalt theory, or you can say it as insight theory, is given by Wolfgang Kohler, Kurt Kafka and Max Wertheimer. These three are very important. इसमें से जो Max Wertheimer है, he is actually known as the founder of Gestalt psychology. Okay, ये हम आगे स्लाइड में भी पढ़ेंगे. Now, this theory implies that when a particular situation is being learned, जब कोई एक particular situation हम learn करते हैं, तो इसमें it does not help to learn only in the parts. वो हम parts में ना learn करके as a whole learn करते हैं, पार्ट्स में ना लर्न करके एज अ होल. सो लर्निंग यहाँ पर क्या हो जाती है? इट इज़ एन एक्सप्लोरेशन, पर्पसफुल एंड क्रिएटिव एक्टिविटी, बट नॉट अ ट्रायल एंड एरर मेथड. आप लोगों को याद होगा हमने जो ट्रायल एंड मेथड करता है स्किनर का, राइट? तो उसमें क्या होता था? ट्रायल करके एरर होता था, तो हम दूसरा कोई ऐसी रैंडम कोई भी कुछ भी यूज़ करके नया कोई आइडिया लगा के करते थे, राइट? इट वॉज नॉट अबाउट आइडिया, बट इट वॉज अबाउट ये हमने वर्क कर लिया, ये नहीं चल रहा है, कुछ और ट्राई करते, कुछ और ट्राई करते. इट वॉज नॉट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वट इज गोइंग ऑन. यहाँ पर क्या है? आप लर्न करो एज अ होल, कैसे उस चीज़ों को परसीव करके, आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, आप उसे देख रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, समझ रहे हो कि इसमें ये प्रॉब्लम है, सोच रहे हो कि इसमें ये चीज़ सॉल्यूशंस हो सकते हैं. यहाँ पर आप अपना कॉग्निटिव थिंकिंग ज़्यादा यूज कर रहे हो. ओके, सो लर्निंग इज डिपेंडेंट अपॉन द इंटेलिजेंस, प्लीज याद रखना, अपॉन द इंटेलिजेंस ऑफ द इंडिविजुअल. इट इज नॉट जस्ट कि कुछ भी रैंडम आपने सोच लिया कि चलो इसको ट्राई कर लेते हैं, चलो इसको ट्राई कर लेते हैं. नो, दिमाग लगा रहे हो, अपना इंटेलिजेंस यूज करो, नॉलेज यूज करो, देन यू आर अप्लाइंग इट हेयर. ओके, so I hope it is clear. Now coming to what is learning by insight theory. Wolfgang Kohler we call him because यहाँ पर ये दो एक ऊपर से आपको एक कॉमा टाइप के लगते हैं, ये वो यहाँ लगते हैं. He was a German, तो जर्मनी में Germans इस टाइप से लिखते हैं नाम. Postulated the theory of learning by insight. इन्होंने postulate करी थी थ्योरी, बट एक्चुअली अगर हम Gestalt theory की बात करें तो the founder was, I just told you who was the founder, Wertheimer. Okay, so now insight is, यहाँ पर क्या होता है? लर्निंग इज टेकिंग प्लेस नॉट एज अ पार्ट बट एज अ होल. हम उसको एक पार्ट्स में ना लर्न करके, पार्ट्स में ना उसको सॉल्व करके किसी प्रॉब्लम को एज अ होल देख के उसको परसीव करके चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं. इनसाइट इज लर्निंग दैट अपीयर्स टू अकर इन अ फ्लैश एंड दैट इन्वॉल्व द सॉल्विंग ऑफ अ प्रॉब्लम. क्या होता है ना कि अभी कोई हमारे सामने प्रॉब्लम है, तो हम उसके बारे में उसको देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि यार यहाँ पर ऐसे होना चाहिए, दिस शुड बी द सोल्यूशन, ऐसे होना चाहिए. अभी हम उसको ट्राई नहीं कर रहे हैं, अभी हम माइंड में सोच रहे हैं कि ये ऐसे सॉल्यूशन हो सकता है, इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं. मीनवाइल क्या होता है? कई बार होता है आप चीज़ें भूल जाते हो, नॉट भूल जाते हो बट लाइक आप किसी और काम में लगे थे. मीनवाइल आपके माइंड में ना वो प्रॉब्लम चलती रहती है, वो एक्ट चलता रहता है कि यार ये एक टास्क मिला था मुझे, क्या है इसका. कई बार होता है ना जैसे कि गाना आपको सुन लेते हो कोई,
एकदम से आपको वो सिंगर याद नहीं आता, तो आपके ना दिमाग में वो चीज़ चलती रहती है। आप लोग, मैनी ऑफ यू माइट बी रिलेटिंग दिस विद यू, राइट? सो ये ना क्या होता है कि आपके दिमाग में वो चीज़ चलती रहती है कि ये था, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, ऑल ऑफ अ सडन आपको आइडिया आता है, अरे ये तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका तो ऐसे होगा। लाइक आपको सिंगर का नाम भी एकदम से याद आता है कि अरे ये तो ये सिंगर था, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट, जो हम एक होता है ना ऑल ऑफ अ सडन कोई चीज़ आपको आ जाना, ऑल ऑफ अ सडन आपको सोल्यूशन निकल आना, दिस इज ऑल अबाउट insight theory. It is a form of problem solving that appears to involve all of a sudden understanding of how elements of situation are related or can be recognized to achieve a solution. जो अभी मैंने आपको explain करा, it is the same thing. Now Gestalt है क्या? It is a German noun for which there is no English word equivalent. तो इसका कोई इंग्लिश वर्ड ऐसे था ही नहीं कि इसको हम एकदम से ये वाला वर्ड बोल दें, तो इसको सिंपली एक इंग्लिश ट्रांसलेशन में बोला गया कॉन्फ़िगरेशन, जिसको हम बोलते हैं एन ऑर्गेनाइज्ड होल, पूरा का पूरा एज अ होल ऑर्गेनाइज हो रखा है, उसको हम ऐसे देख रहे हैं, इन कंट्रास्ट टू बी ए कलेक्शन ऑफ द पार्ट्स। जैसे अगर आपको हम ऐसे बोलेंगे कि अच्छा बायोलॉजी में क्या होता है कि जैसे फ्लावर पे एक्सपेरिमेंट करना है, फ्लावर आपको बताना है और टीचर ने आपको बताना है ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट है, फ्लावर में ये पार्ट्स होते हैं, राइट? तो क्या वो आपको अलग अलग पार्ट ला के दिखा रही है टीचर? नो। क्या हुआ है, पूरा एक फ्लावर लेके आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस टू द फ्लावर, दिस इज अ फ्लावर, राइट? मोस्टली हिबिस्कस फ्लावर में होते हैं एक्सपेरिमेंट्स, इफ यू ऑल मस्ट हैव डन दैट। पहले आपको एक एज अ होल चीज़ दिखाई जा रही है, उसके बाद उसके पार्ट्स को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो सेम थिंग हियर इज इन लर्निंग इनसाइड थ्योरी, दैट पहले कोई चीज़ हम एज अ होल देखेंगे, फिर उसको पार्ट्स में सोचेंगे कि ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे होगा, इसका पार्ट ऐसे है, राइट? तो जैसे जैसे इसके ना ज़्यादातर अगर हम देखें तो एप्लीकेशन आप देखोगे, CID तो ऑलमोस्ट आई सपोज सबने देखा होगा, है ना? जो ये आता था आपका एक सीरियल आता था CID, तो उसमें आप देखोगे जब ये लोग कोई सबूत राइट देखने जाते, इकट्ठे करने जाते थे, सबूत इकट्ठे कर लिए, लेकिन उससे कोई कंक्लूजन नहीं निकाला जाता। कंक्लूजन कब निकालता था? जब उन्होंने सारे पार्ट्स को एक साथ कर दिया, सारे के सारे एविडेंसेस जो मिले उन्होंने एक साथ रखा। उसके बाद नाउ ही इज थिंकिंग, प्रद्युमन था ना, ACP प्रद्युमन, फिर वो सोचा है अच्छा ये ऐसे हो सकता था, ये यहाँ पर ऐसे हुआ, यहाँ पर ऐसे हुआ। एट वंस उनको आइडिया क्लिक होता है, अरे ये तो इसका सोल्यूशन इस प्रॉब्लम का, इस ये जो एक क्राइम हुआ इसका सोल्यूशन ये है, इसका मेन कल्प्रिट ये है। तो वो क्या कर रहे हैं, एज अ होल उन्होंने सारे एविडेंसेस इकट्ठे करे एंड देन उन्होंने उसका सोल्यूशन निकाल लिया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल, राइट? प्लीज समझिए इसको। नाउ इसको हम ट्रायल एंड एरर थ्योरी से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करेंगे, बिकॉज वहाँ पर एक्सपेरिमेंटेशन ज़्यादा इन्वॉल्व था। यहाँ पर क्या है, आपकी इंटेलिजेंस ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही है। ऑल राइट, नाउ कोहलर ने कुछ एक्सपेरिमेंट करे थे चिंपैंजी एप्स के ऊपर, उसमें से 2-3 मैंने यहाँ पर इंक्लूड करे हैं। जैसे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था दैट चिंपैंजी को उन्होंने केज में रख दिया, केज को ना के अंदर उन्होंने बनानास को रूफ में, उसके केज के रूफ में हैंग कर दिया, अब और एक बॉक्स वहीं केज में रख दिया। चिंपैंजी ने क्या करा, जंप कर करके उसने बनानास निकालने की कोशिश करी, पर उसकी हाइट उतनी नहीं थी जितनी कि रूफ तक वो जंप करके पहुंच सके। तो चिंपैंजी ने बहुत ट्राई करे ऐसे जंप करके, तो उसने सडनली क्या सोचा, उसने दिमाग लगाया कि अगर मैं यहाँ पर ये बॉक्स रखूँ, इसके ऊपर चढ़ूँ, तो फिर मैं ये बनानास को निकाल सकता हूँ। एंड ही डिड द सेम थिंग। अब यहाँ पर देखो, ये ट्रायल एंड एरर थ्योरी नहीं है, वो ट्राई नहीं कर रहा है, उसने दिमाग लगाया। ट्रायल एरर होता है कि एडवांस ऐसी जंप हो गया और उसने उससे निकला, उससे जंप करा उसने तो फिर निकाल दिया। नो, यहाँ पर उसने दिमाग लगाया। और जब ये चीज़ लगती है, अगर आप ध्यान दोगे, ट्रायल एंड एरर थ्योरी में क्या होता है, रिपीटिशन हो रही है चीज़ों की। ओके, सेम चीज़ को उसने रिपीट करा, 1-2 बार और करा, तब उसको समझ में आया कि अरे ये तो इस चीज़ से हो सकता है, माउस को या कैट जो भी था उसके अंदर, राइट? यहाँ पर क्या है, चिंपैंजी ने दिमाग लगाया, अपना इंटेलिजेंस यूज करा कि मैं इसको यहाँ रखूँ तो कर सकता हूँ, तो उसको एक बार में वो चीज़ समझ आ गई। तो इट वॉज अ क्विक रिस्पॉन्स टू द सोल्यूशन। ओके, दूसरे एक्सपेरिमेंट क्या था, उन्होंने 2-3 बॉक्सेस रख दिए टू रीच द बनाना चिंपैंजी। अच्छा, उनके जो चिंपैंजी का नाम था वो सुल्तान था, वॉज एबल टू लर्न प्लेसिंग ऑफ 1 बॉक्स ऑन द अदर देन सक्सीडेड इन गेटिंग द बनाना। अब क्या, उन्होंने 2-3 बॉक्सेस रख दिए। ट्रायल एंड एरर थ्योरी होती, वो कभी भी दूसरा बॉक्स उसके ऊपर ना रखता, तीसरा बॉक्स उसके ऊपर ना रखता,
जितने ऊपर भी उन्होंने हाइट में हैंग करेंगे बनानास, तो अभी क्या है, उसको एक बार में समझ आ गया था कि अगर मैं बॉक्स यहाँ पर प्लेस करूंगा तो मैं बनानास तक रीच कर सकता हूँ। तो अब ये इतने ऊपर थे बनानास कि उसने क्या रहा, एक रखा, उसके ऊपर दूसरा रखा, दूसरे से नहीं चढ़ पाया तो तीसरा रखा। सो बिकॉज उसने वो चीज़ कैसे करी थी, क्लिक कैसे हुई थी, एट वंस हुई थी कि मैं ये बॉक्स रखूंगा तो हो जाएगा। तो उसने दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी सेम चीज़ करी। तीसरा उन्होंने एक करा था अ बंच ऑफ बनानास। अब ये वाला जो बनानास था ये बाहर रखे केज के, ओके, और 2 स्टिक्स थी जो उन्होंने उसको केज के अंदर रख दी। आफ्टर सेवरल ट्रायल्स द एनिमल जॉइन द 2 स्टिक्स एंड पुल द बनानास इन विद अ स्टिक। अब देखो क्या करा उसने, एक्सपेरिमेंट में 2 बनानास केज के बाहर रखे गए, चिंपैंजी केज के अंदर था और केज के अंदर उन्होंने 2 स्टिक्स भी रखे। एनिमल उसने बहुत ट्राई करा, चिंपैंजी ने हाथ से निकालने का, एक स्टिक से निकालने का, नहीं निकला। तो उसने क्या करा, दोनों स्टिक्स को जोड़ा। अब यहाँ पर देखो, जोड़ना कोई ऐसे ही रैंडमली नहीं कर सकता, कोई दिमाग लगाएगा, मैं इसे जोड़ूं। जैसे चिमटा होता है ना हमारे घर में, रोटियां सेकते हैं या कुछ किसी चीज़ के लिए यूज़ होता है, तो चिमटे से क्या करते हैं, वो 2 स्टिक्स दे आर जॉइंट टुगेदर, राइट। तो उससे पकड़ के रोटी पलटी जाती है। तो उसने जैसे दिमाग लगाया, मैं इन दोनों को एक साथ करूँगा तो मे बी द चिंपैंजी थॉट दैट मे बी आई कैन होल्ड इट। तो उसने सेम चीज़ करी, उसने दोनों को स्टिक्स को जोड़ा और उसको काइंड ऑफ चिमटा बना के उसने उसको अंदर पुल करा। तो ऐसे में उसने कर लिया। सो हियर ही हैज यूज्ड हिज इंटेलिजेंस, ओके, रैंडम कुछ चीज़ नहीं करी, बट इट वाज एन इंटेलिजेंस। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे कोहलर के जो बहुत पॉपुलर एक्सपेरिमेंट्स है, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप्स जो इन्वॉल्व होते हैं इनसाइट लर्निंग। कुछ स्टेप्स हैं जो कोहलर ने बताए हैं, लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। यहाँ पर क्या है, द मोटिवेटेड टीमर आइडेंटिफाइज द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व इन अटेनिंग द गोल। कोई भी अगर आपको लर्न करनी चीज़ तो पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ओके, कि प्रॉब्लम है कहाँ। कोई बच्चा बार बार फेल हो रहा है, लेकिन आप प्रॉब्लम कहाँ से ला रहे हो। देखो, ऐसे भी तो हो सकता है वो पढ़ने में बहुत अच्छा है लेकिन वो फेल हो रहा है, तो कोई प्रॉब्लम कुछ है, वो पढ़ने में अच्छा नहीं है फिर भी फेल हो रहा है। पर प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, मे बी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, मे बी उसको उसके फ्रेंड्स के साथ कुछ प्रॉब्लम, मे बी उसको वो टॉपिक ही समझ नहीं आ रहा है जो आप पढ़ा रहे हो। तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड इज इनिशियल एफर्ट्स आर इन द फॉर्म ऑफ सिंपल ट्रायल एंड एरर मैकेनिज्म। यहाँ पर क्या है, एफर्ट्स लगा रहा है। एफर्ट्स सिंपली आप ट्रायल एंड एरर मेथड के थ्रू कर रहे हो, कि ट्राई करा, एफर्ट लगा रहा है बच्चा, कोई भी प्रॉब्लम या आपको कोई कुछ प्रॉब्लम कोई टास्क दे दिया तो आप उस पर पहले ट्राई कर रहे हो, है ना, कि ऐसे करते हैं, ऐसे करके देखते हैं। लेकिन आइडिया इज अनदर थिंग, ट्रायल एंड एरर इज अनदर थिंग, राइट। ये प्लीज याद रखना, इसको इससे कंफ्यूज बिल्कुल मत करना। फिर आता है आपका इंक्यूबेशन ऑफ आइडियाज। इट इन्वॉल्व्स अ पीरियड ऑफ हेजिटेशन और पॉज टुवर्ड्स द प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। ये वाला वो पीरियड होता है जब इंक्यूबेशन क्या होता है, अंदर ही अंदर कोई चीज़ डेवलप होना, राइट। तो इंक्यूबेशन काइंड ऑफ आप अदर टास्क में लग गए, लेकिन एट योर सबकॉन्शियस माइंड तो आपके वो टास्क चल रहा है जिसमें आप अभी तक सक्सीड नहीं हो पाए हो, तो आप उसके बारे में सोच रहे हो। इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो, कि ड्यूरिंग दिस पीरियड द माइंड कीप्स द टास्क अलाइव। वो डेड नहीं हुआ है टास्क, बट इट इज अलाइव इन योर माइंड। आप उस पर वर्क नहीं कर रहे हो, बट इन योर माइंड यू आर एक्चुअली वर्किंग इन द टास्क, राइट। फिर आता है आपका इंसाइट डेवलपमेंट। A flash of lightning comes in mind to solve the problematic situation. अब यहाँ पर क्या, इंक्यूबेशन जब पीरियड चल रहा होता है इस चीज़ का, टास्क का, तो यहाँ पर ये जो इंक्यूबेशन, देखो इनिशियल ये एफर्ट वाला जो स्टेज है, यहाँ पर आप ट्रायल एंड एरर कर रहे हो। लेकिन जो ये इंक्यूबेशन ऑफ आइडियाज़ वाला है, कि यहाँ पर आप सोच रहे हो, आप दिमाग लगा रहे हो, अपना इंटेलिजेंस यूज़ कर रहे हो, कॉग्निटिव थिंकिंग यूज़ कर रहे हो, तो ऑल ऑफ अ सडन आपको वो एक लाइटनिंग इन द सेंस आइडिया आपको फ्लैश होता है कि ये इस प्रॉब्लम इस सोल्यूशन के थ्रू हम कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम इस आइडिया से हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आता है रिपीटिशन एंड जनरलाइजेशन। एक बार जब आपको वो उस चीज़ का एक बार इंसाइट, इंक्यूबेशन पीरियड में जब आपको वो इंसाइट डेवलप हो जाता है, तो उसके बाद आप क्या करते हो, वैसी एक अलग सिचुएशन में आप उस चीज़ को अप्लाई करते हो, कोशिश करते हो इसको अप्लाई करने की, और जहाँ वो चीज़ अप्लाई हो गई वहाँ आपकी दूसरे सिमिलर प्रॉब्लम है, तो आप उसको अब इसको जो आपकी ओरिजिनल प्रॉब्लम है उस पर अप्लाई करते हो।
ऐसे में क्या करा आपने, इंडिविजुअल ने उसको जनरलाइज कर दिया ऑफ द सेम प्रॉब्लम। अच्छा, अभी यहाँ पर क्या होता है, जब आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपने देखा होगा कि कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए रहते हैं आप लोगों को, राइट। करने से पहले जो एक्सरसाइजेस होती हैं जो आपने खुद सॉल्व करनी है, उससे पहले कुछ एग्जाम्पल्स दिए रहते हैं। तो एग्जाम्पल्स आर काइंड ऑफ कि आपको सोल्यूशन बताया कि उससे सिमिलर अगर क्वेश्चन आएगा, यू हैव टू सॉल्व इट इन द सेम वे। तो यहाँ आप क्या कर रहे हो, जो एग्जाम्पल आपने अभी ट्राई करा था उसको आप जनरलाइज कर रहे हो, उसको अप्लाई कर रहे हो इन द सिमिलर क्वेश्चन। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड रिपीटिशन एंड जनरलाइजेशन। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर नाउ। ओके, नेक्स्ट अब इसका हम देख लेते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है ऑफ इनसाइट लर्निंग। इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन हम इस तरह से कर सकते हैं, कोहलर्स थ्योरी ऑफ इनसाइट लर्निंग। टीचर शुड प्रेजेंट द कॉन्सेप्ट एज अ होल टू फैसिलिटेट इनसाइट लर्निंग। कैसे करें कि टीचर एज अ टीचर आपने कॉन्सेप्ट को एज अ होल बताना है पहले। जैसे मैंने आपको बायो में बताया एग्जाम्पल, आपने उसको एक फ्लावर दिखा, अगर आप फ्लावर के पार्ट्स आपको समझाने हैं तो आपको पहले पूरा फ्लावर दिखाना पड़ेगा, तभी तो आप उसमें आइडेंटिफाई करवाओगे कि देखो ये पार्ट यहाँ पर है, ये स्टिग्मा यहाँ पर होता है, ये यहाँ पर होता है, राइट। तो ये चीज़ें आपको पहले कैसे दिखाओगे, पहले आपको पूरा एक फ्लावर दिखाना पड़ेगा। सेम वे आपको अगर बच्चे को कुछ चीज़ सिखानी है तो एज अ होल पहले चीज़ बतानी पड़ेगी, देन यू हैव टू मूव इट टू द पार्ट्स। द थ्योरी फोकसेस ऑन द मोटिवेशनल पार्ट ऑल्सो, सो टीचर शुड ट्राई टू अराउज द मोटिवेशन अमंग द लर्नर्स टू लर्न। कोई भी चीज़ लर्न करने के लिए, कोई भी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन। बच्चा जब तक मोटिवेटेड नहीं है वो उस चीज़ को सीख ही नहीं सकता है। देयरफॉर मोटिवेटिंग स्टूडेंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन any kind of learning. Okay, then theory observes that understanding is essential for solving the problem. The teacher should encourage the student to understand the task by avoiding role learning. It is actually rote learning, not role learning, and mere mechanical repetition. देखो, कोई भी चीज़ अगर आपको सॉल्व करनी है प्रॉब्लम की, तो पहले उसको अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है उस चीज़ की। अगर जब तक आप क्वेश्चन को समझोगे नहीं, आप उसको सॉल्यूशन कैसे दोगे, आप आंसर कैसे लिखोगे। देयरफॉर बिफोर doing anything you have to understand the problem, what the problem is all about. बच्चे का अगर लर्न नहीं कर पा रहा है, बच्चा अगर किसी में सब्जेक्ट में फेल हो रहा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो इसमें फेल क्यों हो रहा है, प्रॉब्लम एक्चुअली कहाँ आ रही है। फॉर दैट यू हैव टू डिग beneath to know what the problem is. You have to go inside what is going in the child's mind before criticizing anyone, right? So this is there. Then next is the intellectual capacity of learners is also contributing inside learning. बच्चे को देखो, ये सबको पता है, साइकोलॉजी सबने इतना पढ़ा है, चाइल्ड साइकोलॉजी हम लोगों ने सबने पढ़ लिया है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ टीचिंग एग्जामिनेशन, तो वी ऑल नो दैट हर एक का इंटेलेक्चुअल माइंड जो होता है डिफरेंट है, इंटेलेक्चुअल लेवल डिफरेंट होता है, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी डिफरेंट होती है। तो उसके लिए भी एक लर्निंग जो बेसिस होता है ना, उसके लिए इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी लर्निंग की बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लर्निंग टास्क आर टू बी ग्रेडेड बेस्ड ऑन द इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द चिल्ड्रन। तो ऐसा नहीं है कि कोई आपने इतना डिफिकल्ट टास्क दे दिया कि जिस बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी, थोड़ा इंटेलेक्चुअल लेवल जो होता है थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू द अदर चिल्ड्रन, तो वो तो कुछ कर ही नहीं पाएगा, राइट। देयरफॉर बच्चे को उसकी लर्निंग कैपेसिटी, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही टास्क्स भी देने होंगे आपको, ठीक है। देन थ्योरी एडवोकेट्स द चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच। यहाँ पर आप देखोगे टोटली चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच है। आपने प्रॉब्लम दे दी, आपने बच्चे के ऊपर छोड़ दिया टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो यहाँ पर क्या हो गया, बच्चा चाइल्ड सेंटर्ड। हम किस चीज़ लर्निंग को पढ़ते हैं, जहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग होती है। मेयर रिपीटिशन, मेयर रोट लर्निंग इज नॉट अ चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, दैट इज टीचर सेंटर्ड। तो यहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग हो रही है, जहाँ पर बच्चा क्वेश्चन पुट कर रहा है, जहाँ पर बच्चा खुद सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। ओके, theory tasks through consideration of individual differences in learning based on psychological approach. Learning tasks are to be arranged. Same thing, बच्चे के हर किसी का इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, हर कोई डिफरेंट होता है, तो उसी बेसिस पे हमने क्या करना है, टास्क को भी अरेंज करना है। एंड नॉट द, इट इज़ नॉट द लास्ट, बट मैंने कुछ ही लिखे हैं इसमें द इम्प्लीकेशंस। तो ये अकॉर्डिंग टू माई वीडियो इट इज़ द लास्ट वन, दैट द टीचर शुड डेवलप रीजनिंग पावर एंड कैपेसिटी ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यू फैक्ट्स अमंग द लर्नर विदाउट स्पून फीडिंग ट्रांसमिटिंग ऑफ बुकिश लैंग्वेज। कोई भी टास्क अगर बच्चे को दे रहे हो तो उसका रीजनिंग उसको समझने की ज़रूरत है कि इसको सॉल्व करने के पीछे क्या रीज़न हो सकता है, ये कैसे सॉल्व हो गया, क्यों करा इसको इस तरह से सॉल्व। तो इंस्टेड ऑफ आप उसको
एक एक क्वेश्चन बोर्ड में करके दो बच्चे को, मैथ्स का, साइंस का, कुछ भी है, आप एक एक क्वेश्चन उनको करके दो, तो इससे अच्छा है कि आप एक क्वेश्चन सॉल्व करो और बाकी क्वेश्चंस जो हैं हम बच्चों को बोलें कि आप ये कर लो। तो यहाँ पर क्या, आप स्पून फीड नहीं कर रहे हो, बट यू आर actually giving them, you are actually developing the reasoning power in the child. ओके तो ये कुछ implications थे, एजुकेशनल implications ऑफ योर कॉलर्स इनसाइट लर्निंग थ्योरी। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी और आपके सारे टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग बेस्ड जितने भी आपके एग्जाम्स हैं उन सब में आती है ये। ओके सो यस, दिस वाज द लास्ट लर्निंग थ्योरी विच वी हैव डन। इसके बाद हम कुछ और अलग कुछ थ्योरीज लेके आएंगे रिलेटेड टू दिस चाइल्ड साइकोलॉजी ओनली। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड या बाय बाय।